चैप्टर 52 जेरेमिया किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और हिंदी में BSI बाइबल में से भी पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों की समझ दे ताकि हम नाश ना हो। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। Chapter 52 Zedekiah rebels. Jerusalem is besieged and taken. Zedekiah's sons killed, the captain carried away. First verse. Zedekiah was 120 years old when he began to reign, and he reigned 11 years in Jerusalem, and his mother's name was Hamutal, the daughter of Jeremiah of Libnah. And he did that which was evil in the eyes of the Lord, according to all that Jehoiakim had done. For through the anger of the Lord it came to pass in Jerusalem and Judah, till he had cast them out from his presence, that Zedekiah rebelled against the king of Babylon. And it came to pass in the 9th year of his reign, in the 10th month, in the 10th day of the month, that Nebuchadnezzar king of Babylon came, he and all his army, against Jerusalem, and pitched against it, and built forts against it round about. So the city was besieged unto the 11th year of King Zedekiah, and in the 4th month, in the 9th day of the month, the famine was sore in the city, so that there was no bread for the people of the land. Then the city was broken up, and all the men of war fled and went forth out of the city by night by the way of the gate between the two walls, which was by the king's garden. Now the Chaldeans were by the city round about, and they went by the way of the plain. But the army of the Chaldeans pursued after the king, and overtook Zedekiah in the plains of Jericho, and all his army was scattered from him. Then they took the king and carried him up unto the king of Babylon to Riblah in the land of Hamath, where he gave judgment upon him. And the king of Babylon slew the sons of Zedekiah before his eyes. He slew also all the princes of Judah in Riblah. Then he put out the eyes of Zedekiah, and the king of Babylon bound him in chains and carried him to Babylon and put him in prison till the day of his death. Now in the 5th month, in the 10th day of the month, which was the 19th year of Nebuchadnezzar king of Babylon, came Nebuzaradan, captain of the guard, which served the king of Babylon, into Jerusalem, and burned the house of the Lord, and the king's house, and all the houses of Jerusalem, and all the houses of the great men burned he with fire. And all the army of the Chaldeans that were with the captain of the guard brake down all the walls of Jerusalem round about. Then Nebuzaradan, the captain of the guard, carried away captain certain of the poor of the people, and the residue of the people that remained in the city, and those that fell away and fell to the king of Babylon, and the rest of the multitude. But Nebuzaradan, the captain of the guard, left certain of the poor of the land for wine dressers and for husbandmen. Also the pillars of brass that were in the house of the Lord, and the bases and the brazen sea that was in the house of the Lord, the Chaldeans brake and carried all the brass of them to Babylon. The cauldrons also, and the shovels, and the snuffers, and the bowls, and the bowls, and the spoons, and
all the vessels of brass wherewith they ministered took they away, and the basins and the fire pans and the bowls and the cauldrons and the candlesticks and the spoons and the cups, that which was of gold in gold, and that which was of silver in silver, took the captain of the guard away. The 2 pillars, 1 sea and 12 brazen bowls that were under the bases which King Solomon had made in the house of the Lord, the brass of all these vessels was without weight. And concerning the pillars, the height of 1 pillar was 18 cubits, and a fillet of 12 cubits did compass it, and the thickness thereof was 4 fingers. It was hollow, and a chapiter of brass was upon it, and the height of 1 chapiter was 5 cubits, with network and pomegranates upon the chapiters round about, all of brass. The 2nd pillar also and the pomegranates were like unto this, and there were 96 pomegranates on a side, and all the pomegranates upon the network were 100 round about. And the captain of the guard took Seraiah the chief priest, and Zephaniah the 2nd priest, and the 3 keepers of the door. He took also out of the city an eunuch, which had the charge of the men of war, and 7 men of them that were near the king's person, which were found in the city, and the principal scribe of the host, who mustered the people of the land, and 60 men of the people of the land that were found in the midst of the city. So Nebuzaradan, the captain of the guard, took them and brought them to the king of Babylon to Riblah. And the king of Babylon smote them and put them to death in Riblah, in the land of Hamath. Thus Judah was carried away captive out of his own land. This is the people whom Nebuchadnezzar carried away captive in the 7th year, 3,000 Jews and 23. In the 18th year of Nebuchadnezzar, he carried away captive from Jerusalem 832 persons. In the 23rd year of Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, the captain of the guard, carried away captive of the Jews 745 persons. All the persons were 4,600. And it came to pass in the 37th year of the captivity of Jehoiakim, king of Judah, in the 12th month, in the 25th day of the month, that evil Merodach, king of Babylon, king of Babylon, in the 1st year of his reign, lifted up the head of Jehoiakim, king of Judah, and brought him forth out of prison, and spake kindly unto him, and set his throne above the throne of the kings that were with him in Babylon, and changed his prison garments, and he did continually eat bread before him all the days of his life. And for his diet there was a continual diet given him of the king of Babylon every day, a portion until the day of his death, all the days of his life. यिर्मयाह की भविष्यवाणी 52 अध्याय पहले वचन से। यरूशलेम का पतन। पहले वचन से, जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमोतल था, जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी।
उसने यहोयाकीम के सब कामों के अनुसार वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। निश्चय यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया। सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा से बलवा किया और उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसने उसके पास छावनी करके उसके चारों ओर किला बनाया। यो नगर घेरा गया और सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि लोगों के लिए कुछ रोटी न रही। तब नगर के शहरपनाह में दरार की गई और दोनों दीवारों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था उससे सब योद्धा भागकर रात ही रात नगर से निकल गए और राबा का मार्ग लिया। उस समय कसदी लोग नगर को घेरे हुए थे, परंतु उनके सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के राबा में जा पकड़ा। तब उसकी सारी सेना उसके पास से तितर-बितर हो गई। तब वे राजा को पकड़कर हमात देश के रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गए और वहां उसने उसके दंड की आज्ञा दी। बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और यहूदा के सारे हकीमों को भी रिबला में घात किया। फिर बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन तक ले गया और उसको बंदी गृह में डाल दिया। वह मृत्यु के दिन तक वही रहा। मंदिर का विनाश 12 वचन से आगे। फिर उसी वर्ष अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान, जो बेबीलोन के राजा के सम्मुख खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े-बड़े घरों को आग लगवाकर फुकवा दिया और कसदियों की सारी सेना ने, जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, यरूशलेम के चारों ओर के सब शहरपनाह को ढा दिया। अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान कंगाल लोगों में से कितनों को और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग में बेबीलोन के राजा के पास भाग गए थे और जो कारीगर रह गए थे, उन सबको बंधुआ करके ले गया। परंतु देहात के कंगाल लोगों में से कुछ को अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने दाख की बारियों की सेवा और किसानी करने को छोड़ दिया। यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियों और पीतल के हौज जो यहोवा के भवन में थे, उन सबों को कसदी लोग तोड़कर उनका पीतल बेबीलोन को ले गए और हांडियों, फावड़ियों, कैंचियों, कटोरों, धूपदानों और पीतल के अन्य सब पात्रों को जिनसे लोग सेवा टहल करते थे, वे ले गए। तसलों, करछों, कटोरियों, हांडियों, दीवटों, धूपदानों और कटोरों में से जो कुछ सोने का था उनके सोने को और जो कुछ चांदी का था उनकी चांदी को भी अंगरक्षकों का प्रधान ले गया। दोनों खंबे, एक हौज और पीतल के 12 बैल जो पायों के नीचे थे, इन सब को तो सुलेमान राजा ने यहोवा के भवन के लिए बनवाया था और इन सब का पीतल तौल से बाहर था। जो खंबे थे उनमें से एक एक की ऊंचाई 18 हाथ और घेरा 12 हाथ और मोटाई 4 अंगुल की थी और वे खोखले थे। एक एक की कंगनी पीतल की थी और एक एक कंगनी की ऊंचाई 5 हाथ की थी
और उस पर चारों ओर जो जाली और अनार बने थे वे सब पीतल के थे। कंगनियों के चारों ओर 96 अनार बने थे और जाली के ऊपर चारों ओर 100 अनार थे। यहूदा के लोगों का बेबीलोन की बंधुआई में जाना। 24 वचन से आगे। अंगरक्षकों के प्रधान ने सराया महायाजक और उसके नीचे के सपन्या याजक और तीनों डेवढ़ीदारों को पकड़ लिया और नगर में से उसने एक खोजा पकड़ लिया जो योद्धाओं के ऊपर ठहरा था और जो पुरुष राजा के सम्मुख रहा करते थे उनमें से 7 जन जो नगर में मिले और सेनापति का मुंशी जो साधारण लोगों को सेना में भर्ती करता था और साधारण लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले, इन सब को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गया। तब बेबीलोन के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। इस प्रकार यहूदी अपने देश से बंधुए होकर चले गए। जिन लोगों को नबूकदनेस्सर बंधुआ करके ले गया वे ये है, अर्थात उसके राज्य के 7वें वर्ष में 3023 यहूदी, फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में नबूकदनेस्सर यरूशलेम से 832 प्राणियों को बंधुआ करके ले गया। फिर नबूकदनेस्सर के राज्य के 23वें वर्ष में अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान 745 यहूदी जनों को बंधुए करके ले गया। सब प्राणी मिलकर 4600 हुए। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की बंधुआई के 37वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन का राजा एबिलमरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 25वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया और उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके साथ बेबीलोन में बंद हुए थे उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। उसके बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए और वह जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन करता रहा और प्रतिदिन के खर्च के लिए बेबीलोन के राजा के यहाँ से उसको नित्य कुछ मिलने का प्रबंध हुआ। यह प्रबंध उसकी मृत्यु के दिन तक उसके जीवन पर लगातार बना रहा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, आपके अलावा हम इन वचनों को सीख नहीं सकते थे। आपके अनुग्रह और दया और शांति के कारण हम इस अध्याय तक पहुंच पाए। आगे और ज़्यादा हमें इन वचनों के प्रकाशन और भेद और परमेश्वर कैसा चरित्र रखता है उसके प्रकाशनों से हमें भरपूर कर दीजिए, ताकि हम उसके नाम की चर्चाओं में, उसके वर्णन में हम अपने जीवन को सिद्ध होता हुआ प्राप्त करेंगे। नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 10 चैप्टर 38 वर्स से 42 वर्स। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 8 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 38 नहीं है, ये 33 है। 33 वर्स से 42 वर्स। जॉन 10 चैप्टर 33 वर्स टू 42 वर्स। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 8 चैप्टर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 33 वचन से 42 वचन तक और पहले इतिहास की पुस्तक 8 अध्याय। पहले हम अपने व्यक्तिगत समय में इन वचनों को पढ़ेंगे। जैसे ही हम व्यक्तिगत रूप में अपने पर्सनल टाइम में इसे पढ़ रहे होते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। इन वचनों के अंदर से आने वाला हमारे जीवन की ज़रूरत के हिसाब से हमको प्रकाशन देता है, ज्ञान बढ़ाता है, परमेश्वर के चरित्र का वर्णन हम तक पहुंचाता है और इसी के कारण हम नाश नहीं होते हैं।
हालेलुया। तो एकांत में बैठकर, अकेले में बैठकर इन वचनों को हमने अपने अंदर ग्रहण करते हुए चलना है। ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने हमें उसका आत्मा दिया है, सच्चाई का आत्मा, अनुग्रह का आत्मा। निश्चित हमने उसके आत्मा का लाभ उठाना है इस काम में, यही के लिए उसे हमें दिया गया है। और परमेश्वर 2 साल के अंत में हमको जो बनाना चाहते हैं उसके अनुसार हम निखर कर आएंगे। उसकी जो रचना है उस रचना में हम ढल कर आएंगे और उसके लिए हम उपयोग का बर्तन बनेंगे। ऐसा होने के लिए ही हमने ये 2 साल के बाइबल रीडिंग को अकेले में पढ़ने का निश्चय किया है, व्यक्तिगत समय में पढ़ने का निश्चय किया है। तो हमने ये निश्चय किया है, सभीयों ने नहीं किया है। इसके लिए ये हमारी व्यक्तिगत बात है कि हम इसे अकेले में पढ़ रहे हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो, हमें इन वचनों के भेद बताइए, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए और हमें ईश्वरीय रचना में लेकर आइए। नासरी यीशु के नाम में हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमें बनाइए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर। रिबांता शकियाम बको कत्ता ना रहल रबा खासियांत खासा। धन्यवाद हो पिता, हम आपको घुटनों के बल आकर धन्यवाद का बलिदान देते हैं। अपने हाथों को ऊंचा करके हम बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है, हमारा उद्धारकर्ता, मृत्यु पर जय पाया हुआ, पुनरुत्थित हो चुका, हमारे साथ, हमारे लिए, हमारे बीच में रहने वाला, और आने वाले समय में वो हमारे लिए दोबारा आगमन में होगा, जिससे हम उसके मृत्यु का प्रचार करते करते हम उठा लिए जाने वाले हैं। उसके आगमन में हम उसकी बाट जोहने के लिए अपने आप को तैयार किए हुए आगे बढ़ रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारा सहायक, मददगार, हमारी चिंताओं को करता है और हमें उस स्थान तक पहुंचने के लिए जिसमें हम उठा लिए जाए, परमेश्वर के आगमन में उस स्थान तक पहुंचने के लिए हमारी मदद कर रहा है। थैंक यू फादर। हमारा धन्यवाद और प्रार्थना बलिदान स्वीकार करने की हम तुझसे विनती करते हैं। वचनों की सेवा, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पाया हुआ तेरे वचनों का ज्ञान हम में सुरक्षित रहे और हम तुझे भाता हुआ जीवन जी सके। नासरी यीशु के नाम में हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर। धन्यवाद हुआ बाप।